very important that your score in mains should be 800 plus. That we focus on not only acquisition of knowledge, but to make sure that you are presenting that knowledge in the best possible manner. Second, where the diagrams are supposed to be placed. Any misplaced diagram can backfire also. And how it needs to be prepared, we are going to talk about in this session. Sometimes it happens that you have plethora of knowledge, but now you are writing that content in those long paragraphs. And sometimes the content gets blur. ऐसे में diagram बहुत काम आता है. Hi everyone, a very good morning to all of you. Now, since we all have been over with our prelims, now there are two set of students who would be watching this session. A, who are expecting to write this year's mains, and B, who would be writing their mains in 2027 or even after that. In both the scenario, the next few months are extremely important when it comes down to preparing or the preparation for your mains. I have been very vocal about the fact that if you have to be comfortably clearing this exam and not wanting to be too much dependent on your interview score, it is very important that your score in mains should be 800 plus. And in order to fetch 800 plus, the target for your GS has to be 425 plus. So it is very important that we focus on not only acquisition of knowledge, but to make sure that you are presenting that knowledge in the best possible manner. And one of the technique of doing that is through diagrams. So this session is about the power of diagrams in UPSC GS answer writing. Now, in next few minutes, we are going to understand that why diagrams are important. So that would be the content for this brief session, that why diagrams are important. Second, where the diagrams are supposed to be placed, because any misplaced diagram can backfire also. Third, what is the relevance and which type of diagram needs to be made in different subjects. See, every subject has their own vocabulary. Every subject has their own nuance. Every subject has a different kind of question which is being asked. And accordingly, different set of diagrams have to be incorporated. And it will also add diversity in your answer script. And last but not the least, which are those common templates which can be prepared beforehand and how it needs to be prepared, we are going to talk about in this session. So do watch the session till the end. And if you have any doubts still left, please write us in the comment box. We'll definitely, and I will make sure I personally answer all your doubts. So let's begin with this session. Now, why diagrams are important? See, we need to understand that the only mode of communication between you and your examiner is your answer script. Sometimes it happens that you have plethora of knowledge. You have the understanding of the demand of the question, you have the content. But now you are writing that content in those long paragraphs. And sometimes the content gets blur. And there is a reason behind that. Because the examiner is evaluating too many scripts on a single day, and writing in those long paragraphs can cause a cognitive fatigue. And it may happen that in that process, the examiner misses out on the good content that you have written in your answers. तो फिर क्या फायदा इतनी पढ़ाई का कि अगर वही चीज हम अपने एग्जामिनर को कन्वे नहीं कर पाए. और बहुत बार ऐसा होता है that these diagrams, flow charts, maps, they help you to bridge this gap between what you understand and what examiner is perceiving in your answer. So that perception gap between your intent and examiner's understanding can be reduced if we make a judicial utilization of good diagrams.
Is this very clear? Now, this is basically from the perspective of the examiner कि डायग्राम का क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है. भाई उनका जीवन आसान हो सकता है, एक बार में देख के उनको समझ आ सकता है what you are trying to say, but it is going to be equally beneficial for you also. अच्छा, hands on your heart and tell me this. कभी ऐसा हुआ है that you've read the question, you know what needs to be written. There are a lot of thoughts which are coming in your mind, but when you pen down, when you are writing those thoughts, you realize that you just have 2 pages to write. And you have taken too much of space, too many words you have used. And even then, you are not able to convey your intent entirely to the examiner. ऐसे में diagram बहुत काम आता है. I'll give you a small example to tell what exactly I mean. अब suppose करो मुझे समझाना है that there exists an interlinkage between malnutrition and poverty. अब अगर मैं diagram नहीं बनाऊं and I'm trying to write it through paragraphs, do we understand that it would take 2-3 paragraphs? An examiner will have to search for the content. There will be too much of time we would be wasting in writing the connecting words. For example, however, hence, etc. You know, the connecting word is, are, were, something. बहुत सारी चीजें हो सकती हैं. But अब मैंने diagram बना दिया. I started with what is malnutrition, and malnutrition I said that if there is malnutrition, it will negatively impact physical cognitive development. It will impact the learning outcome, so there will be poor learning outcome. It may also lead to poor absorption of skills. There can be high disease burden, and overall productivity at workplace can be reduced. Exactly, ठीक है? And all of this creates ground for poverty. And if there is poverty, then there will be lack of food, lack of nutritious food, and lack of absorption of nutrition by body, which in turn will lead to malnutrition. अब आपने देखा मैंने आपको समझाने के लिए कितने शब्दों का इस्तेमाल किया, और अगर मैं वैसे ही लिखती, so too many words would have been taken in order to write a simple concept that malnutrition and poverty together constitutes a vicious cycle, जो कि कितने अच्छे से एक डायग्राम में समा गया. तो बहुत बार कहते हैं ना कॉन्व्यूलेटेड थॉट्स जो दिमाग में आ रहे होते हैं वो बहुत इजीली कन्वे होते हैं अगर हम डायग्राम्स को यूज करते हैं. दूसरी बात, कभी कभी क्या होता है, हम एनालिटिकल, हमारा क्या थॉट प्रोसेस है, हम कैसे सिस्टमैटिकली सोच रहे हैं, हम कैसे अपने आर्ग्यूमेंट को दिमाग में स्ट्रक्चर कर रहे हैं, ये भी बहुत आसानी से कन्वे हो जाता है अगर हम चेन्स और फ्लो चार्ट्स को यूज करें. अब जैसे एक सिंपल सी बात है, आई थिंक कौन सा तो पेपर था, पेपर 3 इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन आया था, ग्लोबलाइजेशन इज लीडिंग टू इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ लेबर मार्केट. ठीक है, एंड इफ आई हैव टू कन्वे माई इंटेंट टू द एग्जामिनर, it can be done by using these flowchart type of diagrams or through the chain style. For example, globalization, the economic ideology associated is capitalism, where the motive is profit maximization, which is possible when your cost of production is minimum and which can be ensured if your wages are minimum. And one of the means of keeping wages minimum is that you start outsourcing the work, which is nothing but informalization of labor market. जरूरी नहीं है you write it in the horizontal format, आपको जैसे अच्छा लगे. You can write vertically, but vertically थोड़ा space ज़्यादा ले लेता है. So we prefer going horizontal so that it will occupy less space, which is basically our intent. तो बहुत बार हम कैसे सिस्टमैटिकली स्ट्रक्चर्ड एनालिटिकली सोच रहे हैं, दैट कैन ऑल्सो गेट इजिली कन्वेड टू द एग्जामिनर थ्रू दीज डायग्राम्स. इज दिस क्लियर? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से एज इन द एस्पिरेंट्स, सी आई ऑलवेज बिलीव मेंस इज अ स्टेज ऑफ मार्जिनल गेन्स. Each and every extra mark that you score is going to make a significant difference in overall your selection process, your rank, and ultimately your service and cadre. So isliye it's not about, do we realize now, it's not about how good you are, it is about how relatively you are better than your
aspirant. So now we have to make every possible effort to achieve a very small target, that is to score that one extra mark in every answer. And one of the means of doing that is making a proper usage or utilization of diagrams. Is this very clear for everyone? So do we understand why diagrams are important? ठीक है? चलो. There are more such things, but let me show you. Now, just few more examples. इस बार question भी था smart city पे. We were expecting the question. तो smart city mission, it is dealing with infrastructure and digital services. Overall, it will ensure access to your basic needs, digital inclusion, and good common and public space, which will create grounds for empowerment of urban poor. And overall, it will lead to distributive justice and inclusive urban growth. So that is also one way of doing it. Another way, which I believe that how it can give the clarity in the beginning, is also depending upon the nature of the question. But I'll reach that part later. Let's talk about the second aspect, that is where to place the diagrams. Now see, in every answer, you have three things: introduction, body, and conclusion. We are very clear on this, right? Now, one basic suggestion: we do not write the first thing in the answer a diagram. We don't make that. We write, you can start with a statement, and then in the introduction itself, you can make a diagram. But the diagram is not the first thing to be written in the answer. For example, जैसे एक question आया on paradox of poverty. ठीक है, अब उसमें आप स्टेटमेंट से शुरू कर सकते थे कि इनइक्वालिटी विथ रिस्पेक्ट टू एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज इज वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर पॉवर्टी. वो क्वेश्चन का स्टेटमेंट ही दे रखा था. उसके बाद आप पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी यूज कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, one of the way of making diagram is also through equations. I'll discuss different types of diagram. अभी मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि कैसे हम इंट्रोडक्शन में भी डायग्राम डाल सकते हैं. So what is paradox of poverty? You have abundant resources, but at the same time there is unequal or inefficient distribution. So through this equation type of diagram also, you can start your introduction. Similarly, एक question है, मैं आपको टॉपर स्क्रिप्ट के थ्रू दिखाती हूँ. There was a question कि for effective corporate governance, there has to be an integration of this metrics of environment, social governance with the multi-stakeholder approach. So this is nothing but integrating ESG with multi-stakeholder approach. तो ये question था corporate governance पे. So what the selected candidate did, started with what do you mean by corporate governance, एक लाइन में definition लिखी, and immediately, since this was the context of the question that there has to be an integration between ESG and the multi-stakeholder approach to ensure effective corporate governance, immediately it was followed by this diagram. अब ऐसा थोड़ी ना है कि question repeat कर दिया. क्वेश्चन में सिर्फ ESG लिखा था, environment, social and governance. What exactly did the aspirant meant when the person said environment or social or governance? That has been written in the diagram. If the person is talking about multi-stakeholder approach, then who are those different stakeholders? That has also been incorporated in the diagram. तो अब एग्जामिनर को ये क्लैरिटी मिल गई कि what aspirant meant when she or he defined what is corporate governance. फिर ये भी कि what does it mean when you talk about integrating this ESG metrics with your multi-stakeholder approach. तो अब एग्जामिनर को ये क्लैरिटी आ गई कि how the student is going to proceed with the answer. अब उसने reasons लिखे कि इसकी क्या जरूरत है और इसके क्या फायदे होंगे और ultimately conclude कर दिया answer. Is this very clear? But the moment you incorporate the diagram, it makes your work so easy. It makes your content so visible. क्या आपको एक बार में देख के नहीं समझ आ रहा कि the student what they are trying to convey? And I'm trying to make as much as utilization of the topper's answers just to give you that confidence that if they can make use of the diagram, so can you.
Is this very clear for everyone? So yes, can we make diagrams in the introduction? We can, but it should not be the first thing. You start answer with a statement and then you can incorporate the diagram. Is this clear for everyone? The second thing, एक और दिखा देती हूँ. सपोज करो इमोशनल इंटेलिजेंस पे आ जाए. आपने एक लाइन में डिफाइन कर दिया इमोशनल इंटेलिजेंस. फिर आपने ये दिखाया हाउ इमोशनल इंटेलिजेंस इज नॉट जस्ट इमोशंस प्लस इंटेलिजेंस, इट इज समथिंग बियॉन्ड दैट. And in order to show that the person has made use of equations. ये equations बड़ी काम आती हैं when you have to define the concept in the minimum possible words. So चाहे वो society हो, चाहे वो ethics हो, these equations are very handy. So now you can have a look. Emotional intelligence is emotion plus intelligence. That's one thing. Along with that, you should have the knowledge about other circumstances, ability to have just decisions, or to ensure empathy and compassion. And finally, EI is not equal to E plus I. It is much beyond that. And did you notice that the student has clearly labeled the diagram at the end? That what is the intent of this figure? Similarly, in the previous diagram, this is the script of Medha Anand. So the point here is, this is how the diagrams can be used when we are talking about the introduction. Now once it is done, अब body में depend करता है. ये question specific होता है. आपसे steps पूछे गए हैं, reasons पूछे गए हैं, causes पूछे गए हैं, consequences पूछे गए हैं, dimensions पूछे गए हैं, aspects पूछे गए हैं, टाइप्स पूछे गए. ये आप पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है. नाउ डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, इन द बॉडी ऑल्सो वी कैन इनकॉर्पोरेट डायग्राम्स. फॉर एग्जाम्पल, लेट अस से द क्वेश्चन इज ऑन अर्बन पॉवर्टी. सो द स्टूडेंट हैज ट्राइड टू शो very briefly in the body that what are the cause and what are the consequences. Later the person has explained in detail because that is the purpose of the question. But very briefly, when you show it through the diagram, the examiner gets the clarity that how you have intent to proceed. Similarly, dimensions of food security. The person has very specifically incorporated in this hub and spoke type of a diagram. जहां पर उन्होंने ये स्पेसिफाई कर दिया what are the different dimensions of food security. सपोज करो किसी के बीच में रिलेशन, जैसे एथिक्स और लॉ में रिलेशन पूछना बहुत कॉमन है. आए दिन हर दूसरे तीसरे साल ये सवाल आ ही जाता है. सो इन दैट केस, कैन वी मेक अ डायग्राम लाइक दिस? एब्सोल्युटली यस. नाउ इफ यू नोटिस, दिस क्वाड्रेंट टॉक्स अबाउट समथिंग विच इज लीगल एंड एथिकल. The second quadrant, something ethical but illegal. Third, both illegal and unethical. And lastly, something which is legal but it is unethical. अब जैसे ही आप देखोगे, आपको exactly relation समझ आ रहा है between legal and ethical. You start with what do you mean by ethics, what do you mean by law. Then you have to establish the interrelationship between the two. You can make use of the diagram. And in this diagram, through the example, you have conveyed to the examiner your understanding of the topic. And most importantly, are we realizing it is breaking the monotony of your answer writing? So this comes very handy. Is this very clear? So can we make diagrams in the introduction? Yes. Can we make diagrams in the body? Yes. What kind of diagrams depend upon the nature of the question. Similarly, can we make use of the hub and spoke model while writing the steps or something like that? Yes, absolutely. Again, this is a topper script, I think Animesh Pradhan. So we can make use of this presentation. Now comes to the point that can we make diagrams in the conclusion? So again, the same statement, the diagram should not be the last thing with which you conclude. उसके बाद एक सिंगल लाइन जरूर लिख देना. बट कैन वी मेक डायग्राम्स इन द कंक्लूजन? यस. एंड हाउ कैन वी डू दैट? इट डिपेंड्स अगेन ऑन द नेचर ऑफ द क्वेश्चन. लेट अस सपोज इट इज टॉकिंग अबाउट सम रेमेडीज, वे फॉरवर्ड, स्टेप्स टू बी टेकन. तो आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं. एक तो आप इस तरह से लिख सकते हो और फिर एक लाइन में कंक्लूड कर दो. नहीं तो आप
ऐसे भी लिख सकते हो, वो सन स्टाइल ऑफ राइटिंग नहीं होता कि मार्जिन है, हमने सेमी सर्कल बनाया एंड देन उसमें से रेज निकाल के हमने पॉइंट्स लिख दिए। फॉर एग्जाम्पल अगर एजिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो कैन वी प्रेजेंट इट लाइक दिस? यस वी कैन डू दैट। अगर ऐसे नहीं करना तो एक और तरीका होता है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं और फिर एक लाइन से कंक्लूड कर सकते हैं दैट हाउ इट इज सिग्निफिकेंट टू अचीव द अबव रेमेडियल मेजर्स इन ऑर्डर to prepare our nation to reap the benefits of longevity dividend. Aging से related है ना, तो मैं एक ultimate conclusion बता रही हूँ। And if you remember, हम हमेशा conclusion में बात करते हैं ना कि दो तरह के conclusions होते हैं, एक penultimate और एक ultimate। तो ये जो भी steps, way forward, remedial measures, ये सब आपके penultimate conclusion होते हैं। Last जो line आप लिखते हो उसको ultimate conclusion कहते हैं। So that has to be taken care of. So can we make diagram in the intro? Yes, but it should not be the first thing. Can we make diagram in the conclusion? Yes, but it should not be the last thing. एक last statement, कोई अच्छे से statement के साथ, किसी ने कुछ बोला हो वो लिख दो, SDG goal से relate कर दो, कोई अच्छी सी कोटेशन डाल दो, किसी का पर्सपेक्टिव लिख दो, पर कोई एक अच्छी लाइन से अल्टीमेट कंक्लूजन देना होगा। Is that very clear for everyone? So are we clear that how it can be incorporated? Can we proceed further? ठीक है? Now, the first thing that we talked about, why it is important to incorporate diagram. Second, where it needs to be placed. Now, the third important aspect is the subject specific relevance. ऐसा नहीं है कि since I am teaching a particular subject, तो diagram केवल आप society में या ethics में या social justice में बनाओगे। Diagram हर पेपर में बनाया जा सकता है, but हाँ, हर पेपर की अपनी एक डिमांड होती है। जैसे कि मैंने एक डिटेल टेबल बनाई है कि अगर मुझे हिस्ट्री में डायग्राम बनाना है तो 2-3 तरीके हो सकते हैं। पहला हो सकता है कि हम जिस स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन आए तो हम वो स्ट्रक्चर का डायग्राम बना दें। सपोज करो सांची स्तूपा पे क्वेश्चन आ जाए तो हम वो दिखा सकते हैं बनाकर, ठीक है। तो एक तो वो तरीका होता है। दूसरा क्या, हिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं तो आप वो क्रोनोलॉजिकल फ्लो चार्ट्स बना सकते हो दैट व्हाट एग्जैक्टली हैज हैपेंड, ठीक है। या फिर हो सकता है आप मैप्स भी, अगर किंगडम वगैरह पे क्वेश्चन आ जाए तो आप मैप्स को भी यूज कर सकते हो। नहीं तो अगर कंपैरिजन पूछ लिया जाए तो कंपैरेटिव टेबल्स भी बनाई जा सकती हैं, ठीक है ना। जैसे बहुत बार आपने देखा होगा कि दो पर्सनालिटीज के पर्सपेक्टिव पे क्वेश्चन आ जाए कंपैरिजन पे, ठीक है, या तो कोई ट्रेडिशन पे कंपैरिजन आ जाए, तो ऐसे में द कंपैरिजन टेबल्स कैन आल्सो बी मेड। तो क्या हिस्ट्री में डायग्राम्स बनते हैं? बिल्कुल बनते हैं, एंड दैट विल गिव यू एन एज। तो चाहे आप स्ट्रक्चरल डायग्राम्स बनाओ, चाहे आप क्रोनोलॉजिकल चेन्स बनाओ, चाहे आप टेबल्स बनाओ, दैट्स योर कॉल, ठीक है। सिमिलरली ज्योग्राफी में तो सच में मैप्स बनाने से बहुत आसान हो जाता है। अब सपोज करो डेजर्ट पे क्वेश्चन है, सपोज करो माउंटेन सिस्टम पे क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, और या सपोज करो कोई इंडस्ट्रीज पे क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो वो मैप बना के उनको लोकेट करना कितना आसान हो जाता है, आपका विजिबिलिटी कितनी बढ़ जाती है। दूसरा, ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट्स तो डायग्राम्स के थ्रू बहुत आसानी से एक्सप्लेन किए जा सकते हैं। अब सपोज करो रॉक फॉर्मेशन है, वॉल्केनो है, अर्थक्वेक्स हैं, देयर आर सो मेनी topics, or monsoon, there are so many topics on which the diagrams can be used in order to convey our understanding better to the examiner. Is that very clear? So geography again is a very potential area where diagrams can enhance your score. Is that clear? ठीक है। अब GS पेपर 1 में जो तीसरा पेपर है, तो मैं सोसाइटी और सोशल जस्टिस मैंने कंबाइन कर दिया है। यहाँ पे बहुत स्कोप है, यहाँ पे फ्लो चार्ट्स हैं, वेन डायग्राम्स हैं, हब एंड स्पोक मॉडल है, विशियस साइकिल है, यहाँ बतेरा स्कोप है, टैब्यूलर रिप्रेजेंटेशन है। इनफैक्ट सोसाइटी और सोशल जस्टिस में तो यू शुड मेक एन एफर्ट टू इनकॉर्पोरेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायग्राम्स इन ऑर्डर टू कन्वे योर अंडरस्टैंडिंग बेटर टू द एग्जामिनर। मैं आपको एक दिखाती हूँ, आपको समझ आएगा। देखो, स्तूपा ऑफ सांची थ्रू डायग्राम। Similarly, major deserts in the world. तो we can make use of the diagrams, चाहे हिस्ट्री हो चाहे
ज्योग्राफी हो, ठीक है, चाहे मैप्स हो चाहे स्ट्रक्चरल डायग्राम्स हो, दैट्स योर कॉल. लेट मी शो यू वन डायग्राम. हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, मैंने आपसे कहा था ना क्रोनोलॉजिकली ट्रेस कर सकते हैं. दिस वाज सम क्वेश्चन रिलेटेड टू इंडियाज कैपिटलिस्ट क्लास, हाउ दे हैव बीन चेंजिंग देयर स्टांस एज द नेशनलिज्म हैड प्रोसीडेड. So it all started. See the chronology if you can see and if you can read how it all started. Congress was established, capitalist class dominant ideology was there. Then they wanted the protection of trade and peace, kept themselves away from any kind of violence. They did not participate only. They failed to understand the Britain's mercantilism and thus they favored them. After that, there was Bengali sentimentalization during Swadeshi movement. After that, there was rise of trade union, labor union, and finally antagonism with the Britishers. So can you see? And later the student explained everything. But through this diagram, the chronology was established, the ambivalent support of the capitalist class. That's the name for the diagram. So again, in the history, this could be done. Similarly, if I talk about society and social justice, this is what I mean when I say Venn diagram. अगर मुझे किसी का कोलैबोरेटिव एफर्ट दिखाना है कि हाउ गवर्नमेंट, हाउ पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, एनजीओज, all of them can come together and bring, let us say, sustainable development, let us say justice, equality, equity in the society. अब डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या है. Let us say question is on gender justice or equity or women empowerment. तो हम बात कर सकते हैं कि government has a role to play, private sector has a role to play, and then NGOs also have a role to play. अब what is the role of the government? Diagram में बना दो कि policy बनाना, ठीक है, देन इंफ्रास्ट्रक्चर, फ्रेमवर्क, वो सब उनका काम है. प्राइवेट सेक्टर की बात करें, इन्वेस्टमेंट लाना, टेक्नोलॉजी लाना, जॉब क्रिएशन करना, ये इनका काम है. एनजीओज की बात करें, अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करना या मोबिलाइजेशन करना, कैपेसिटी बिल्डिंग करना, ये इनका काम है. तो थ्रू दिस वेन डायग्राम यू कैन शो दैट कोलैबोरेटिव एफर्ट. तो चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे सोसाइटी सोशल जस्टिस हो, इन योर इंटायर जीएस पेपर 1 you have lot of potential and scope to make diagrams, and trust me, it will give you an edge over others. Crossing 3-digit mark will not be a challenge for you. And not only this, if I talk about GS paper 2 as well, similarly on the same grounds, इंटरनेशनल रिलेशंस, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है कि मैप्स को हम कितना बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है. पॉलिटी गवर्नेंस की अगर मैं बात करूं, यहां पे हब एंड स्पोक मॉडल बहुत अच्छा बन सकता है. यहां पे वेन डायग्राम्स बहुत अच्छे बन सकते हैं जब आपको गवर्नेंस के टॉपिक्स दिखाने हो, आपको अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसीज दिखानी हो, लेट अस से आपको किसी की रिकमेंडेशंस कोट करनी हो. तो ऐसे में द हब एंड स्पोक मॉडल or let us say the flow chart kind of presentation can come very handy. Then comparative tables polity में बहुत काम आ सकता है. In fact एक question society में पूछा था but polity में भी पूछ सकते हैं. जैसे इंडियन सेक्युलरिज्म को कंपेयर करना वेस्ट के साथ, बेस्ट तरीका है टेबल बनाने का, ठीक है. या सपोज करो आपको सेंटर लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट दिखाना हो तो वेन डायग्राम बना सकते हो. या फिर अगर आपको सेंटर और स्टेट के पावर और रोल्स को डिस्कस करना हो तो आप विथ रिस्पेक्ट टू एनी पर्टिकुलर आर्टिकल तो आप टेबल को यूज कर सकते हो. डिड यू गेट माई पॉइंट? ठीक है. या सपोज करो आपसे चैलेंजेस पूछ लिए जाएं कि अर्बन लोकल बॉडीज के या पंचायत राज के, तो हम बोलते नहीं अक्सर लैक ऑफ 3F, फंड्स, फंक्शन एंड फंक्शनरी. तो वहां पर आप चैलेंजेस लिख सकते हो एक ट्राइंगल बनाकर और फिर 3Fs दिखा सकते हो. या आप एक सेमी सर्कल बना के 3 चीजें लिख सकते हो, लैक ऑफ फंड्स, लैक ऑफ फंक्शंस एंड लैक ऑफ फंक्शनरीज. आपकी प्रेजेंटेशन पे डिपेंड करता है आप कैसे बना रहे हो. इज दिस क्लियर फॉर एवरीवन? देन इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स में ग्राफ्स का रोल, पाई चार्ट का रोल, विशियस साइकिल का रोल, फ्लो चार्ट का रोल, टेबल्स का रोल, ये बहुत सिग्निफिकेंट हो जाता है. इज दिस वेरी क्लियर? ठीक है. नेक्स्ट, इंटरनल सिक्योरिटी. अगेन हम मैप्स बना सकते हैं,
और वो नेटवर्क बेस्ड डायग्राम्स, जब आपको रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना होता है तो वो इजीली बनाया जा सकता है। देन एनवायरमेंट में भी विशियस साइकिल बहुत अच्छे से बनती है। लेबल डायग्राम मैंने साइंस एंड टेक इसमें मेंशन नहीं किया, साइंस एंड टेक में तो डायरेक्ट डायग्राम्स बना सकते हो आप, प्रोवाइडेड हमने कितनी पढ़ाई करी है, ठीक है। तो साइंस एंड टेक हो गया, एनवायरमेंट हो गया, तो डायग्राम्स को बहुत आसानी से आप यूटिलाइज कर सकते हो, टेबल्स को यूज कर सकते हो, ठीक है, विशियस साइकिल क्रिएट करके दिखा सकते हो, सो दैट कैन बी डन. And finally, it is GS paper 4, that is your ethics. Now in ethics, again, equations come very handy. Pyramids come very handy. Hub and spoke model comes very handy. Those concentric circle based diagrams comes very handy. Ethics may actually section A can give you an edge provided you're writing every answer in a different manner. That diversity can be added and it can break the monotony by effectively utilizing the diagrams. So do you get to understand, the PPT would be available to you, that how different diagrams are relevant in across all the 4 GS papers. You just need to practice. Clear है? ठीक है। अब मुद्दे की बात आती है कि वो कौन से बेसिक डायग्राम्स हैं जो हमें तैयार करने चाहिए। सबसे पहला, द साइकिल बेस्ड डायग्राम, जिसे आप विशियस साइकिल भी कह सकते हो और वर्चुअस साइकिल भी कह सकते हो, डिपेंड करता है आपका टॉपिक क्या है। तो यू कैन मेक अ नोटिंग ऑफ इट। द फर्स्ट मोस्ट कॉमन वे ऑफ मेकिंग द डायग्राम इज योर साइकिल्स। वो अक्रॉस, चाहे वो एनवायरमेंट हो, चाहे वो पॉलिटी गवर्नेंस हो, चाहे वो एथिक्स हो, चाहे वो सोसाइटी सोशल जस्टिस हो, वो बहुत हैंडी आता है। सो फर्स्ट इज द विशियस और द वर्चुअस साइकिल डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक। दूसरा जो तरीका होता है, द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टाइल, दैट इज फ्लो चार्ट बेस्ड। अब उसे आप फ्लो चार्ट बेस्ड कहो, चेन बेस्ड लिंकेजेस कहो, वो आपकी चॉइस है। मैं एक एग्जाम्पल देके बता देती हूं कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। जो सेकेंड टाइप ऑफ डायग्राम है, अब एक क्वेश्चन आया कि वर्क फ्रॉम होम, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ वर्क फ्रॉम होम ऑन द फैमिली रिलेशनशिप, ये क्वेश्चन था। अब यार इतना कुछ था लिखने के लिए, तो फिर एक पॉइंट आया, इट विल हेल्प इन स्ट्रेंथनिंग द जॉइंट कॉन्जुगल रोल्स, इट विल हेल्प इन इंप्रूविंग द रिलेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। अब ये कैसे एक्सप्लेन करते, तो ये चेन के साथ लॉजिक कर दिया, नहीं तो अगर लिखने बैठते तो बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ्स हो जाते। एंड अगेन रिमेंबर कॉग्निटिव फटीग, अब आपको देखते ही समझ आ जाएगा, बोथ स्पाउसेस आर एट होम, देयर इज डाइल्यूशन ऑफ सेक्सुअल डिविजन ऑफ लेबर, इट विल इनहैंस सेंसिटाइजेशन इन द फैमिली, we will respect each other's work, especially unpaid household and care work done by women, and hence it will challenge patriarchy. It becomes easier. अब मुझे नहीं पता आपको इजी लग रहा है कि नहीं, मुझे बताते वक्त बहुत आसान लग रहा है। यू नीड टू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स कि आपको आसान लग रहा है या नहीं। नहीं तो अगर पैराग्राफ में लिखा हुआ होता है, बोरिंग नहीं लगता है कई बार पढ़ना, इतना लंबा लंबा पैराग्राफ कौन पढ़े बार बार, बट ये हद में नहीं करना है। जहां जहां आर्ग्यूमेंट्स बड़े हों, जगह कम हो, वी कैन मेक यूज ऑफ इट। इज दिस क्लियर? ठीक है, तो 2 डायग्राम समझ आए। तीसरा जो मोस्ट कॉमन हो जाता है वो हब एंड स्पोक मॉडल है, बट वापस आते हैं इस पे। सो द थर्ड, सो फर्स्ट आई टोल्ड अबाउट द विशियस साइकिल, सेकेंड वी टॉक्ड अबाउट द चेन और द फ्लो चार्ट, तीसरा हब एंड स्पोक है। ये बड़ा काम आता है, ये मैंने अभी भी आपको दिखाया था, जहां आपको स्टेप्स लिखने हों, आपको टाइप्स लिखने हों, आपको डायमेंशंस लिखने हों। अब सपोज करो इमोशनल इंटेलिजेंस की ही डेफिनेशन देनी हो, या बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू डैनियल गोलमैन। अब आपको उसमें सेल्फ अवेयरनेस, मोटिवेशन, रेगुलेशन, एम्पैथी, सोशल स्किल्स ये बताना है। आपने झट से एक हब एंड स्पोक मॉडल बना दिया। हब एंड स्पोक क्लियर हुआ ना, हब इन द सेंटर एंड देन यू हैव मेड द स्पोक्स। कितना आसान तरीका है, ठीक है। तो एक तो ये हब एंड स्पोक हो गया, और हब एंड स्पोक के भी ना बड़े तरीके होते हैं। एक तो ये हब एंड स्पोक है, एक आप ना ट्रायंगल बना सकते हो। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को अक्सर क्या बोलती थी, अगर किसी चीज के 3 पार्ट्स हैं तो ट्रायंगल बना दो, किसी चीज के 4 पार्ट हैं तो स्क्वायर और रेक्टेंगल बना दो, किसी चीज के 5 या उससे ज्यादा पार्ट हैं तो फिर हब एंड स्पोक बना दो।
अब अगर सपोज करो मुझे डिफाइन करना है अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल व्हाट आर द 3 मोड्स ऑफ परसुएशन, तो उन्होंने 3 चीजें बोली हैं, इथोस, पैथोस एंड लोगोस। मैं एक ट्रायंगल बनाऊं, एक में लिखूं इथोस, एक में पैथोस, एक में लोगोस। जैसे मैं आपको एक चीज बताती हूं, एक क्वेश्चन आया कि पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी का क्या सिग्निफिकेंस है एडमिनिस्ट्रेशन में। अब ये स्टेक होल्डर अप्रोच यूज करना चाह रहे थे, इसमें इनको डायग्राम चाहिए था सिलेक्टेड कैंडिडेट, और उनको 3 लेवल्स पे दिखाना था कि ब्यूरोक्रेट के लिए क्या फायदा है, पॉलिटिशियन गवर्नमेंट का क्या फायदा है, और फॉर सिटीजन क्या सिग्निफिकेंस है। देखो 3 जगह दिखाना था तो ट्रायंगल बनाया और 3 एस्पेक्ट्स दिखा दिए। अब ये विजिबली कितना क्लियर दिख रहा है, जगह भी कम लगी, एक डायग्राम से मोनोटनी भी ब्रेक हो गई, एंड देन योर कंटेंट इज विजिबल ऑल्सो। तो हब एंड स्पोक जब मैं बोलती हूं तो उसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हर बार वो 5 स्पोक्स या 6 स्पोक्स ही निकालने हैं। अगर 3 है तो ट्रायंगल बना दो, अगर 4 हैं तो आप स्क्वायर रेक्टेंगल बना के उसके 4 पार्ट्स दिखा सकते हो। इज दिस वेरी क्लियर फॉर एवरीवन? ठीक है, यहां तक सबको क्लियर हो रहा है? तो 3 हो गए। चौथा है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम बड़ा हैंडी आता है जब आपको किसी का कोलैबोरेशन दिखाना हो, किसी का इंटरसेक्शन दिखाना हो। ठीक है, जैसे आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन करना है तो आप वेन डायग्राम यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे अभी हमने दिखाया कोलैबोरेटिव एफर्ट ऑफ गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, एनजीओस, आप वेन डायग्राम यूज कर सकते हो। इज इट मेकिंग सेंस? अगर मुझे किसी का सेट और सबसेट दिखाना है, जैसे सोशल इन्फ्लुएंस मेरा सेट है पर परसुएशन उसका सबसेट है, और दोनों पे सवाल आ जाए तो मैं एक सेट बनाऊंगी और उसके अंदर छोटा सा परसुएशन उसका सबसेट दिखाऊंगी। तो अगेन वेन डायग्राम्स कैन कम वेरी हैंडी। इज दिस वेरी क्लियर? ठीक है, चौथा आई थिंक हमने कितने तरीके, 4 तरीके बात कर लिए। 5th इज द टेबल। जब भी किसी के बीच डिफरेंस पूछ लें, कॉन्ट्रास्ट पूछ लें, कंपैरिजन पूछ लें, tabular representation comes very handy, and I have seen lot of toppers are making a very judicial utilization of tables। तो आपको भी करना है, ठीक है। लेकिन एक हार्टफेल्ट रिक्वेस्ट है, कोशिश ये करेंगे कि जब भी 2 चीजों को कंपेयर करते हैं या कॉन्ट्रास्ट करते हैं तो आपके एस्पेक्ट साइड में लिखे हुए होने चाहिए। ये मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूँ कि अगर सपोज करो मुझे 2 स्टूडेंट्स को कंपेयर करना है तो मैं ये थोड़ी ना कहूंगी वन इज अ गर्ल एंड अदर इज फ्रॉम यूपी। क्या कंपैरिजन हुआ? तो मेरे पास कोई कॉमन पैरामीटर्स होने चाहिए ना 2 चीजों को कंपेयर करने के लिए। एज क्या है, डोमिसाइल क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, जेंडर क्या, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, ठीक है ना। वैसे ही जब आप किसी चीज को कंपेयर करोगे आपके पास हमेशा कॉमन डायमेंशंस होने चाहिए। इज दिस वेरी क्लियर फॉर एवरीवन? ठीक है, नेक्स्ट कॉमन टेम्पलेट जो हम यूज करते हैं दोज आर मैप्स। और मैं इसको टेम्पलेट इसलिए बोल रही हूँ, मैप्स बतेरी जगह यूज होता है। मैप्स हिस्ट्री में यूज होता है, ज्योग्राफी में यूज होता है, सोसाइटी में यूज होता है, इंटरनेशनल रिलेशंस में यूज होता है, इंटरनल सिक्योरिटी में बहुत आसानी से यूज होता है। तो मैप्स की यूटिलिटी बहुत अच्छी है, तो प्लीज प्रैक्टिस करो, मैप्स बनाना बहुत हैंडी आएगा। इज इट मेकिंग सेंस? ठीक है, एंड फाइनली another way of doing it is the cause effect chains, और let us say अगर हमको अभी हमने करा था ना कॉज और कॉन्सिक्वेंस वाला जिसमें हमने इंटरलिंकेज दिखा दी थी, तो वो भी एक तरीका हो सकता है। तो बेसिकली देयर आर दी 6-7 वेरी कॉमन वे ऑफ मेकिंग द डायग्राम्स। हाँ, एक जो लास्ट हम ऐड कर सकते हैं वो है द डायग्राम्स विच डिफाइन द कॉन्सेप्ट। अब चाहे वो स्ट्रक्चरल डायग्राम्स ऑफ हिस्ट्री हों, चाहे वो कॉन्सेप्चुअल डायग्राम्स आपके ज्योग्राफी के हों या साइंस एंड टेक के हों, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट को डिफाइन करने के लिए जो डायग्राम्स होते हैं दे आर ऑल्सो, जैसे लैंड फॉर्म्स बना देना, वोल्केनो, अर्थक्वेक्स, टेक्टोनिक प्लेट्स, एवरीथिंग, चाहे सैंड हो जाए, रॉक फॉर्मेशंस हो जाए, दे आर मल्टीपल वेज, ठीक है। तो ये तो कॉन्सेप्चुअल डायग्राम्स हैं, सो दे कैन ऑल्सो बी made. So total there are 7 essential way of making the diagrams. It can be beyond that also. Is this very clear for everyone? यहाँ तक सबको पक्का क्लियर हुआ? ठीक है। Now while making the diagrams,
कुछ बातों का बहुत ध्यान रखना। अभी तक तो हम इतनी देर से यही बात कर रहे हैं, डायग्राम क्यों बनाना चाहिए, कहाँ कहाँ बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, बट अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या नहीं करना है। एक चीज, डायग्राम का पर्पस है टू सिंप्लीफाई योर प्रेजेंटेशन, नॉट कॉम्प्लिकेट। तो प्लीज कॉम्प्लिकेट मत करना, बहुत ज्यादा डायग्राम्स नहीं बनाना, बहुत गॉडी डायग्राम्स नहीं बनाना, टू मच ऑफ लेबलिंग नहीं करना। इट शुड बी प्लीजिंग टू आईज, देख के एक बार में समझ आना चाहिए, ऐसा डायग्राम बनाना। देखो, डायग्राम इज लाइक अ डबल एज स्वॉर्ड, जितना क्लीन, क्लियर और कॉन्टेक्चुअली करेक्ट डायग्राम है उतने अच्छे मार्क्स। लेकिन अगर गलत बना दिया, गलत लेबलिंग कर दी, बहुत गॉडी, बहुत कॉन्वुलेटेड डायग्राम बना दिया, तो हो सकता है बैकफायर कर जाए। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, डायग्राम यहाँ पे आपको अपनी क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक स्किल्स नहीं दिखानी है, तो बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना डायग्राम बनाने में। अगर कोई डायग्राम 60 से 90 सेकंड के अंदर नहीं बन रहा है आपसे, आप वहीं छोड़ दीजिए, आप मत बनाइए। इट डजंट डिजर्व। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, हो सकता है वो एक आध एक्स्ट्रा मार्क ना मिले, लेकिन अगर आंसर ही कंप्लीट नहीं हुआ, पेपर कंप्लीट नहीं हुआ, तो बहुत ज्यादा मार्क्स चले जाएंगे। तो वो हरकत नहीं करेंगे। अगर तो आप नीट डायग्राम बना सकते हो, कॉन्टेक्चुअली करेक्ट डायग्राम बना सकते हो और 1 से 1.5 मिनट में बना सकते हो, तो बनाना, वरना मत बनाना। इज दिस वेरी क्लियर फॉर एवरीवन? ठीक है, अब आता है फाइनली कि क्या करें, कैसे सीखें ये बनाना। जो मैंने किया था मैं आपको बस वही बता रही हूं। सबसे पहली चीज, जब आप PYQs देखते हो तो अब ये डेलिब्रेट एक्सरसाइज करना। 3 स्टेप्स हैं। पहला, पिक अप द क्वेश्चन जो आपको बिल्कुल दिख रहा है, मतलब इट इज वेरी ऑब्वियस कि इस क्वेश्चन में डायग्राम बनाने से शायद कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाए, बहुत ऑब्वियसली जिन PYQs में आपको दिख रहा है। तो वहां आप डायग्राम बनाकर प्रैक्टिस करो और कोशिश ये करो कि डिफरेंट डायग्राम्स प्रैक्टिस करो। और आप कुछ ऐसे लेटर से 10 से 15 क्वेश्चंस PYQ से उठा लो जहां पे आपको लगता हो कि डायग्राम बनाया जा सकता है। जब आप इस तरह से डेलिब्रेट एफर्ट मारते हो ना, तो इट इज काइंड ऑफ एन एक्सरसाइज जहां पर यू बिकम कंफर्टेबल, और आई मस्ट से यू बिकम एन एक्सपर्ट टू आइडेंटिफाई दोज क्वेश्चंस इन विच द पॉसिबिलिटी ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग अ डायग्राम इज हाई। तो एक तो वो करेंगे। दूसरा, जब नेक्स्ट टाइम आप अपना मॉक टेस्ट लिखोगे, तो नाउ यू विल मेक अ डेलिब्रेट एफर्ट कि हर आंसर में मुझे एक डायग्राम डालना है, चाहे वो टेबल हो, चाहे वो इलस्ट्रेशंस हो, चाहे वो इक्वेशंस हो, ट्रायंगल हो, वेन डायग्राम हो, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हो, विशियस साइकिल हो, जो करना है करो, लेकिन हर एक आंसर में मुझे कुछ ना कुछ करना है, जिससे मुझे ये आइडिया लगेगा कि क्या मैं नए क्वेश्चंस में ये चीज इनकॉर्पोरेट कर सकती हूँ। इज इट मेकिंग सेंस फॉर एवरीवन? यहां तक क्लियर हो रहा है? ठीक है। और तीसरा, मैं 25 to 30 डायग्राम्स की एक कॉपी तैयार करूंगी। ये मैं आपके लिए बता रही हूँ, आपको करनी है। एक साइड में आपकी कॉपी तैयार होनी चाहिए जिसमें आप कुछ कॉमन डायग्राम्स, 25-30 डायग्राम्स आप तैयार रखोगे कि अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आई विल बी, मैंने देखो टेम्पलेट्स आपको बता दिए हैं, टेम्पलेट वही 7-8 रहेंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे, लेकिन बेस्ड ऑन दोज टेम्पलेट्स यू क्रिएट अ स्मॉल कॉपी विच कंटेन्स दोज 25-30 डायग्राम्स विच कैन बी रिपीटेडली यूज्ड इन डिफरेंट पेपर्स। इज दैट वेरी क्लियर? ये आपका होम असाइनमेंट है। अब आपका टास्क है कि ये तीनों स्टेप्स करोगे और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में आके लिखोगे कि क्या इससे कुछ फायदा हुआ या नहीं। आई पर्सनली cater to your doubts. So on this note, I conclude this session and I hope it has added some value to your existing preparation. On this note, take care, stay blessed, happy learning.